جب میں 5 سال کی تھی دادی نے چچا زاد نصیر کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا۔ دادی ہمیشہ چچی کو کہا کرتی تھی کہ رافعہ کو بہو بنانا، لیکن دادی کی آنکھیں بند ہوتے ہی چچی نے اپنا مزاج بدل لیا۔ دادی کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی کہ انہوں نے صحن کے بیچوں بیچ دیوار کھڑی کر دی۔ یوں محبتوں کے تاج محل میں بھی دراڑ پڑ گئی۔ پہلے ہمارا اور چچا کا ایک ہی گھر تھا، پھر ایک گھر میں 2 گھر ہو گئے۔ رفتہ رفتہ چچی اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئی۔ ہم بچوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور دعا سلام ختم ہو گیا۔ ابو اور چچا نے بھی دوری اختیار کر لی، جب ضرورت ہوتی تو باہر مل لیتے۔ میں جو نصیر کی مانگ تھی اس کی صورت دیکھنے کو ترسنے لگی۔ امی اور چاچی کے درمیان کی دوریاں ہم معصوم دلوں کا بے حد نقصان کر رہی تھی۔ بچپن کے بندھن ٹوٹ گئے اور ہم گھائل پرندوں کی مانند نفرتوں کے جال میں پھڑپھڑاتے رہ گئے۔ خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، وہ جیسے طاق میں تھی۔ انہوں نے فوراً جھولی پھیلا کر اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ ابو نے چچا کو آخری بار کہلوایا، چچی نے ٹکا سا جواب دیا، تو خالہ جان کی مرادیں بھی پوری ہو گئی اور میری شادی کی تاریخ خالہ کے بیٹے عاصم سے طے ہو گئی۔ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، اپنی مرضی سے میری زندگی کا سودا طے کر دیا۔ چند دنوں بعد میں خالہ کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ عاصم اچھی پوسٹ پر تھے، ہر طرح سے اس گھر میں سکھ چین تھا۔ خالہ کا پیار اور دیگر سہولتیں موجود تھی، لیکن دل نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا تھا۔ عرصے تک میں افسردہ رہی۔ بچپن سے نصیر کی محبت کا نقش دل پر جو تھا وہ مٹتا نہیں تھا۔ ایک روز مجھے اداس دیکھ کر امی نے سمجھایا، بیٹا شادی ہو گئی ہے اور عاصم میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ ساس پیار کرنے والی ملی ہے تمہیں، تمہاری سگی خالہ ہے، ماں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، اپنی اچھی قسمت پر شکر کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائیں اور یہ سب تم سے چھن جائے۔ اماں کی باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا، کافی دن سوچا اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ ٹھیک کہتی ہیں۔ چچی مجھے بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اگر نصیر سے شادی ہو جاتی تو وہ میرا جینا حرام کر دیتی۔ تب کیا ہوتا؟ نصیر سے میرا ذہنی رشتہ بچپن کا تھا، اب اس کو بھلا دینا آسان نہیں تھا، پر پھر بھی میں نے صبر کر لیا۔ اس کی یاد کو دل کی گہرائیوں میں دفن کر دیا، اس کی چاہت کو کاغذ کی ناؤ بنا کر ماضی کی لہروں میں بہا دیا۔ قسم کھا لی کہ سچے دل سے اپنے شوہر کی ہو کر رہوں گی، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس رشتے کا احترام کروں گی۔ نصیر کی یاد دل میں بسا کر یا خیالوں میں بھی اسے لا کر اپنے شوہر سے خیانت نہیں کروں گی۔ قدرت کو کیا منظور ہے یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ مجھے بھی خبر نہ تھی کہ شادی کے 3 برس بعد اچانک میرا نصیر سے سامنا ہو جائے گا۔ ایک دن خبر آ گئی کہ تایا جان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بھی ہمارے ہی محلے میں رہتے تھے۔ سب عزیز رشتہ دار ان کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ چچا ان دنوں عمرے پر گئے ہوئے تھے۔ آپس کی رشتہ داری تھی، ایسے موقعوں پر آمنا سامنا لازم ہوتا تھا۔ 3 سال بعد نصیر نے جب مجھے دیکھا تو وہ افسردہ ہو گیا۔ میں کافی کمزور ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا گئے۔ فوتگی کے گھر میں بہت رش تھا، میرا دم گھٹنے لگا۔ شور کی آوازیں سن کر میرا جی بیٹھ گیا۔ ان دنوں میں امید سے تھی، اس سبب بھی شاید مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ سیڑھی پر جا بیٹھی، جب آنکھوں تلے اندھیرا سا آنے لگا تو اوپر چھت پر جانے کی سوچی۔ خیال ہوا کہ اس طرح کچھ تازہ ہوا ملے گی تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر اوپر گئی تھی۔ یہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہوگا۔ جب میں اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، خالہ جان کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ خیر چھت پر پہنچی تو کسی کو چارپائی پر لیٹا ہوا دیکھا۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر وہ اٹھ بیٹھا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ نصیر تھا۔ ابھی ہم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، بات کرنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ چھت پر عاصم آ گئے۔ دراصل وہ گھر جانے کے لیے خالہ سے چابی لینے آئے تھے۔ خالہ نے کہا کہ چابی رافعہ کے پرس میں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ رافعہ کہاں ہے، تو خالہ نے بتایا کہ میں چھت پر ہوں۔ یہ سن کر وہ چھت پر آ گئے اور یہ دیکھ کر وہ بت بن گئے کہ وہاں نصیر بھی موجود تھا۔ عاصم اور نصیر دونوں کو دیکھ کر میرے سان ہتا ہو گئے۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، پھر بھی میں خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی، کیونکہ عاصم جانتے تھے کہ میری بچپن سے نصیر کے ساتھ منگنی رہ چکی ہے۔ وہ یہی سمجھے کہ میں جان بوجھ کر چھت پر اس سے ملنے آئی ہوں۔
एक लम्हा गुजरा और फिर वो आगे बढ़े और मुझे बाजू से पकड़कर अपने साथ ले आए। उन्होंने मुझे बमुश्किल पर्स उठाने दिया। घर आते ही मारने लगे, कुछ इस बुरी तरह के मैं तसव्वुर न कर सकती थी कि आसिम के अंदर ऐसा शख्स भी छुपा हो सकता है। वो बिल्कुल हैवान लग रहे थे। वो शायद मुझे मार ही डालते अगर उस वक्त हाला ना आ जाती। उन्होंने अपने बेटे को पकड़ा और मुझे कमरे में जाने को कहा। जो वाकया हुआ था वो कोई वाकया नहीं था, महज इत्तेफाक था। मगर आसिम कुछ और ही समझ रहा था। मैं नहीं समझा सकती थी कि क्या हुआ और कैसे हुआ। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि जिस शख्स को मैं मजाजी खुदा समझकर उसकी अताअत और फरमाबरदारी में उम्र गुजारने का अहद कर चुकी हूँ, वो मुझसे इतना बुरा सलूक कर सकता है। बड़ी देर तक हाला आसिम को समझाती रही। आसिम ने रात को नींद के लिए 2 स्लीपिंग पिल्स ली, तब कहीं जाकर वो सोए। अब उनके सो जाने के बाद हाला ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वो अंदर आई। हाला ने पूछा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। मैंने रो रो कर कस्में खाई और बताया कि हाला मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे वहाँ भीड़ में घुटन हो रही थी, जी मतलाने लगा तो छत पर चली गई। मुझे ये खबर भी नहीं थी कि वहाँ नसीर पहले से मौजूद है। अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों जाती। उसी लम्हे आसिम भी वहाँ आ गए। उन्होंने समझा कि मैं नसीर से मिलने ऊपर गई थी। मुझे इसीलिए उन्होंने मारा है कि तुम्हारा अभी तक मंगेतर के साथ ताल्लुक कायम है। हालांकि मुझे अपने इस होने वाले बच्चे की कसम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शादी के बाद मैं कभी उससे नहीं मिली। ये सरासर बहतान है। हाला ने मेरे बयान पर यकीन कर लिया, मुझे गले लगाया और मैं ज़ारो कतार रो रही थी। उनको मुझ पर तरस आया। उस दिन ये यकीन आ गया कि हाला वाकई माँ की जगह होती है। अगर हाला की जगह चची या कोई भी और औरत होती तो मेरी बातों पर यकीन ना करती, बल्कि बढ़ा चढ़ाकर ज़माने को सुनाती और मुझे तलाक दिलवा देती। लेकिन हाला ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने बेटे को समझाया कि मैंने उसको छत पर जाने को कहा था। उस बेचारी को क्या पता था कि वहाँ पर कौन मौजूद है। उसे वॉमिटिंग हो रही थी, इसलिए ऊपर भेजा था कि सांस बहाल हो जाए, घुटन दूर हो जाए। हाला ने मामला अपने ऊपर ले लिया और मेरा पूरा दिफा किया। मेरी कस्मों पर शायद मेरे शौहर को यकीन ना आता, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की कस्मों पर यकीन कर लिया। कहते हैं कि शकी मर्द के दिल से शक नहीं जाता। आसिम ने भी वक्ती तौर पर यकीन कर लिया, जबकि एक खलिश दिल में थी। सो वो मौजूद रही। अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। बात बात पर वो मुझे मेरे मंगेतर के ताने देते थे। उनके तानों ने मेरी जिंदगी को दहकता हुआ जहन्नम बना दिया था। हरदम ये गम तड़पाने लगा था कि इनको मेरी पाकदामनी पर इतबार नहीं है। वो बात बात पर कहते थे, तुम्हारा माजी मशकूक है, लिहाजा मुझे यकीन है कि तुम्हारी कोख में पलने वाली ये औलाद मेरी नहीं है। मैं इसे कभी कबूल नहीं करूँगा और कभी इसे बाप का प्यार नहीं दे सकूँगा। जब कोई शौहर अपनी बीवी से ऐसी बातें करे तो जिंदगी भला कैसे अच्छी हो सकती है। बिलाशुबा मैं जिंदा शक की चिता में चल रही थी। रोज ही अपने नसीब पर आंसू बहाती थी, आठ आंसू रोती थी और सोचती थी कि इस हिसाब से तो बेहतर होता कि मैं तलाक ले लेती। उस शख्स ने माँ के मजबूर करने पर मुझे पनाह तो दे दी थी, लेकिन अपनी औलाद को भी शक भरी नजरों से देखता था। ये बात मेरी रूह को जलाने वाली थी। मैंने मैके जाना छोड़ दिया, क्योंकि साथ ही नसीर का घर था। आसिम शक करते थे कि मैं मैके में शायद नसीर से मिलने जाती हूँ। जब ऐसी कोई सोच इनको सताती, वो बहाने से झगड़ने लगते। मैं एक बच्चे की माँ बन चुकी थी और इस सलूक को सहते सहते थक गई थी। आसिम अपनी बच्ची को भी नहीं उठाते थे। ये मासूम फूल भी बाप के शको शुबा भरी निगाहों की तपश से मुरझा कर रह गया था। वो उसे उठाना तो क्या, हाथ तक नहीं लगाते थे। वो चाहते हुए भी औलाद को मोहब्बत न दे सके। इस अजाबनाक जिंदगी को 5 बरस गुजर गए। तब एक रोज मैंने सोचा कि ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है, पर फिर अपनी मासूम बच्ची के बारे में सोचा। एक औरत कब तक अपने शौहर की बदसलूकी और उसकी दी हुई जिल्लत को सह सकती है। आखिरकार तो जुल्म की एक हद होती है। एक रोज एक शादी पर जाना था। मैंने आसिम से कहा कि बच्ची के लिए एक नया जोड़ा खरीदना चाहती हूँ, उसको शादी में ले जाऊंगी। ये सुनकर वो एकदम गुस्से में आग बगोला हो गए। खुदा जाने किस सोच में तप रहे थे। चिल्ला कर बोले, मैं क्यों लेकर दूं? मेरी बेटी तो नहीं है, जिसकी बेटी है वही लेकर दे। मैं तो आस्तीन में सांप पाल रहा हूँ। उस रोज जाने कहाँ से मुझ में हिम्मत और ताकत आ गई। उसी वक्त मैंने फोन करके भाई को बुला लिया और ये अल्फाज उनके सामने दोहराए जो आसिम ने कहे थे। अगर तुम लोगों के पास मेरे और मेरी बेटी के लिए रहने के लिए जगह और 2 वक्त की रोटी नहीं है तो बेशक मैं सड़क पर भीख मांग लूंगी, लेकिन अब इस शख्स के साथ नहीं रहूंगी।
खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलो, अब मैंने मजीद एक पल भी यहाँ नहीं रहना। भाई ने जाने कैसे मेरे हक में फैसला कर लिया, कहा कि चलो मेरे साथ, खानदान के बुजुर्ग खुद फैसला कर लेंगे। अब तुम इस कदर जिल्लत में जिंदगी नहीं गुजारोगी और हम मर नहीं गए, अभी तुम्हारे वारिस जिंदा हैं। हाला रोकती रह गई। भाई मुझे और मेरी बेटी को साथ ले आए। अब्बू अम्मी ने ठंडे दिल से तमाम अहवाल सुने, फिर हाला और हालू को बुलावा भेजा, उनसे ख़त्मी बात की। उन्होंने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने हाला और खालू के साथ घर लौटने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो आसिम को साथ लेकर आए। उसने अम्मी अब्बू से माफ़ी मांगी, यकीन दहानी कराई कि अब राफा को तंग नहीं करूँगा, अच्छा रखूँगा। अम्मी अब्बू ने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी मर्ज़ी क्या है। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि अगर आपने मुझे अपने घर में नहीं रखना तो मैं दारुल ईमान चली जाऊँगी, लेकिन वापस आसिम के घर नहीं जाऊँगी। वालिदैन ने समझाया, रिश्तेदारों ने भी जोर लगाया, लेकिन मैं ना मानी, क्योंकि मैं आसिम की फितरत को अच्छी तरह समझ चुकी थी। इंसान जानबूझकर दहकती हुई आग में नहीं कूदता। मैं भी ना गई, क्योंकि जानती थी कि जाऊंगी तो फिर वही होगा। शक का नाग आसिम के अंदर घर कर गया था, जब मौका पाएगा डसेगा। अब्बू ने देखा कि वाकई राफिया नहीं जाना चाहती, जबरदस्ती की तो जान से जाएगी। उन्होंने आसिम पर दबाव डाला कि हमारी बेटी को तलाक दे दो, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। सास की दिली ख्वाहिश थी कि मैं वापस आ जाऊं। वो अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी। मुझे ससुराल जाने से ही खौफ आता था। चंद दिन खामोशी रही, फिर आसिम ने एक औरत से रिश्ता जोड़ लिया। माँ से कहा कि तन्हा जिंदगी नहीं गुजार सकता, शादी के बगैर नहीं रह सकता, दूसरी बीवी का इंतखाब कर लिया है, आप राजी हो जाएं, वरना मैं खुद निकाह कर लूँगा। अब हाला परेशान थी, बेटा भी हाथ से जा रहा था और बहू भी वापस आने को तैयार ना थी। उन्होंने अम्मी से बात की और अम्मी ने साफ कह दिया, जो शख्स अपनी औलाद को औलाद तस्लीम करने पर तैयार नहीं, उसे मशकूक निगाहों से देखता है, उसके साथ राफिया जिंदगी कैसे गुजार सकती है। मायूस होकर हाला ने बेटे का दामन थाम लिया। आसिम ने अपनी मर्जी की औरत से निकाह कर लिया। अब्बू ने अदालत के जरिए खुला का दावा दायर किया। खुला के बाद मैं आज़ाद थी, लेकिन अपनी बच्ची की खातिर दूसरी शादी ना करना चाहती थी। एक रोज़ चचा और चची आए। वो अम्मी अब्बू को मनाने आए थे, क्योंकि नसीर ने मेरे सिवा किसी से शादी करने से इनकार कर दिया। उसने वालिदैन से कहा कि उम्र भर शादी ना करूँगा, अगर मेरी खुशी मंजूर है तो ताया से राफिया का हाथ मांगे, अब वो आज़ाद है। चचा और चची ने बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की तो अम्मी अब्बू राज़ी हो गए। उन्होंने मुझे भी समझा बुझाकर मना लिया। यूँ मेरी शादी नसीर से हो गई। इस शादी पर भी रिश्तेदारों ने खूब बातें बनाई। आसिम ने खानदान भर में ये बात फैलाई कि राफिया के नसीर के साथ गलत ताल्लुकात थे। शादी के बाद उसने अपने साबका मंगेतर से ताल्लुक ख़त्म नहीं किया था। रस्म राह जारी रही, तभी मैंने अपनी बीवी को छोड़ा। बात सही हो या गलत, प्रोपेगेंडा बड़ा काम करता है। मुझे सब ने गलत समझा, हालांकि मेरा खुदा जानता है कि मैं गलत नहीं थी। तभी तो शादी के बाद नसीर से मुलाकात तो क्या फ़ोन पर बात भी नहीं की, मगर ज़ुबानों पर ऐसी ऐसी बातें थी कि सुनकर जी भर आता था। सच है कि लोगों के मुंह पर हाथ नहीं रखा जा सकता, हर कोई अपनी सी करके गुजरता है। लोग जो कहें, खानदान वाले जो समझें। मैं यही कहूँगी कि नसीर की मोहब्बत सच्ची थी, इसी वजह से उसको मैं मिल गई। मैं अपने ज़मीर से शर्मिंदा हूँ, ना अपने खुदा से। हाँ, इस बात की मशकूर ज़रूर हूँ कि उसने मुझे तलाक के बाद एक नई प्यार भरी और खूबसूरत ज़िंदगी अता कर दी। चची सोचती थी कि ये रिश्ता पहले कर लेती तो अच्छा था, फिर भी देर आई दुरुस्त आई। इनका बेटा खुश है तो वो भी खुश है, हम पुरसुकून ज़िंदगी जी रहे हैं। अल्लाह जाने आसिम को कैसी ज़िंदगी मिली, हमें इससे क्या गर्ज, जिसने अपनी सगी बेटी से कोई गर्ज न रखी। ऐसे शकी इंसानों से खुदा बचाए जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और दूसरों की भी।